Welcome everyone. Jai Shri Hari. Thank you so much for joining in. Sorry for the slight delay in starting the streaming as well as changing the link at the final moment. But yet you're all here. Thank you very much. We had a bit of a technical difficulty and we had to start a few minutes late as well as change the link as well. So thank you so much for being here. And my name is Vikram Shastri. I am the COO of Vedic Sadhana Foundation, and we welcome you all today. I know we have been we have been discussing about having this event. This is the first event that we are doing for Tantra Sadhana. So welcome on this auspicious moment and time when we will be beginning on the eve of Gupt Navaratri. We will be starting off a sadhana. Brahmachari Parak Om is waiting. He is going to come join us in a minute. So I'm just going to introduce who we are for a minute, and then Brahmachari will take over. So so many of you are you have been associated with us either through Swamiji, Om Swami, as devotees, as supporters of our app, or through the newly launched Tantra Sadhana app and the Tantra Circle initiative. So no matter how you have joined us, thank you very much for being here, and means a lot to us. And as very quick introduction, Vedic Sadhana Foundation is a non-profit founded by Sri Om Swami and Om Swamiji, as we call him dearly. And as most of you know, Swamiji, it's his vision to revive Vedic practices and make it accessible to the younger generations, especially through technology. So under this aegis of VSF, as we call ourselves, Vedic Sadhana Foundation, we have a number of products: Sadhana app, Tantra Sadhana app, Astro Sadhana, Sadhana tablet, Black Lotus, and so on, with the single mission of reviving Vedic practices authentically and giving it and making it accessible to all. So if you see, there are a lot of content available, books available, podcasts available to learn things, but where do we perform them? Where do we do them and take first-hand experience? And that too from a credible, authentic source. So that's where Swamiji comes in, and he is a revered monk and serial entrepreneur, and somebody who has walked this path, performed 15,000 hours of meditation, performed a number of hours of mantra chanting, and more importantly, realized the truth firsthand, walked the path, and that is why from somebody like him, we can learn how we can discover our own truths. So Swamiji has this saying to discover our own truth. So looking at somebody who has walked the path, it's easier to know what kind of practices we can do and what is the right way to do it. And that's exactly what is given through all the apps that are there. So Tantra Sadhana, which was released in April, is an initiative to revive the lost Tantra practices authentically. There were days where people would go to the cremation grounds, to the forest to perform these rituals. In today's time, A, it is difficult to go to such places. B, it is also difficult to know what are the steps one can do. So in order to revive that, Swamiji has given us all the steps in the comfort of our mobile phone itself. So Tantra Sadhana is that app where we can perform Tantra practices, especially Dash Mahavidyas practices, in the comfort of our home, in our device itself. Now, I think I've taken a couple of minutes to introduce Swamiji and VSF. So I'll come back at the end of the QA session. I think it is time that we invite Brahmachari ji, as we call him fondly,
Brahmachari Parak Om, disciple of Om Swamiji, and um, a practitioner himself. So we'll invite him, and he can start and kick off the Gupt Navratri, Ma Kali, and Dash Mahavidya worship. Brahmachari ji. Thank you so much, Vikram. Thank you so much for the beautiful, beautiful introduction. I hope I am audible and visible properly. Please, अगर कुछ भी टेक्निकल ग्लिच हो, do let me know in between, so मुझे थोड़ा पता चले। और जब कभी भी हमारे ऑडियंस की ओर से कुछ भी अगर मैसेजेस आए या फिर उनकी ओर से कोई ग्लिच का कोई मैसेज आए, प्लीज डू लेट मी नो, ताकि हम ऑडियो विजुअल को एक बार चेक कर पाए। सो आई वेलकम ऑल द साधक्स हु हैव जॉइंड ऑनलाइन हमारे साथ। बहुत ही पावन पर्व की शुरुआत होने वाली है, और आई फर्मली बिलीव कि हमें इस पर्व की शुरुआत एक इन्वोकेशन के साथ करनी चाहिए, बिकॉज ये पर्व जो है वो नवरात्र का पर्व है, और वो भी गुप्त नवरात्र, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइम्स इन द ईयर। 10 महाविद्याओं की साधना यहाँ पर की जाती है, और आज पहली बार तंत्र साधना ऐप के माध्यम से एक 10 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, मात्र एक ही उद्देश्य के साथ, पूरे विश्व भर के साधकों को जो वास्तव में तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें हैंड होल्ड करने के लिए। जो हमारे गुरु श्री ओम स्वामी के द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया, उनकी अपनी साधनाएं, जो साधनाओं के माध्यम से उन्होंने स्वयं 10 महाविद्याओं का साक्षात्कार किया, वही साधनाएं, उन्हीं मंत्रों की दीक्षा को और उन्हीं उपासना की पद्धति को आप सभी तक पहुंचाने के लिए ही ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। इट इज कम्प्लीटली फ्री, और हमारा एकमात्र यहाँ पर उद्देश्य कह लो या फिर स्वार्थ कह लो, वो यही है कि आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। सो ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक टू इन्वोक डिवाइन मदर, जो ब्रह्मांडीय तंत्र विद्या है, सर्वोच्च महाविद्या है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। उन्हें आज पहले दिन पर हम इन्वोक करेंगे, जागृत करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, ताकि आने वाले 10 दिनों तक, गुप्त नवरात्रि के इस पावन पर्व के दौरान, आपकी साधना की यात्रा के दौरान, उनकी अपार कृपा हम सब पर बरसती रहे, और गुरु तत्व जो है वो हमारे अंतर मन में विराजमान रहे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अपने अपने स्थान पर बैठकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, सर्वप्रथम गुरु तत्व को आवाहन देंगे, और तत्पश्चात देवी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी को हम आवाहन देंगे, उनको पुकारेंगे, ताकि वो हमारे हृदय कमल पर आकर स्थापित हो। ओ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीविद्यां शिववामभागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारानिधिम् सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम्
रक्तोत्पलां बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अंबिकाम्। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। श्री गुरवे नमः। इदम गुरवे इदम नमः। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका इस वर्कशॉप के लिए, जहाँ पर हम तंत्र साधना के बारे में और गहराई से जानने वाले हैं। 10 महाविद्याओं की उपासना के बारे में एवं उनके स्वरूपों के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि कृपा के बिना कुछ भी संभव हो नहीं सकता। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, जिन्होंने उत्साह दिखाया कि हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। देखिए, आज की तारीख में बहुत भ्रमणाएं फैल रही हैं। दीक्षा के बिना इन मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, तांत्रिक मंत्रों की तो बात ही नहीं की जा सकती। 10 महाविद्या जो है वो बहुत रौद्र होती हैं, उग्र होती हैं, और घर में हमेशा अलग अलग प्रकार की तबाही लेकर आती हैं, अगर आप उसे घर के अंदर बैठकर उपासना उनकी की जा रही है तो। ये सारी बहुत बड़ी भ्रमणाएं हैं। भ्रमणा के अतिरिक्त ये और कुछ भी नहीं है। तो इसी एक विधान के साथ मैं आज की इस सेशन की शुरुआत करना चाहता था, क्योंकि जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं ना, मन में यदि जरा सा भी संशय होगा, डर होगा, दुविधा होगी, शंका होगी, तो देवी माँ को कभी आप एक भावपूर्ण तरीके से अथवा समर्पण के साथ, भक्ति के साथ नहीं पुकार पाएंगे। यदि मन में भय होगा तो भावना की कोई संभावना नहीं होती। और यदि किसी भी प्रकार से किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करनी हो, तो सबसे पहले भय से मुक्त होना नितांत आवश्यक है। हमारे अपने जो सेट बाउंड्रीज हैं उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी बन जाता है। कल से अमावस्या जो है वो शुरू हो रही है, और 10 महाविद्याओं की साधना में सबसे पहले देवी माँ काली का स्थान आता है। माँ काली कहीं ना कहीं काल रात्रि है, अंधकार के साथ जुड़ी हुई है। इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, जो आदि है वो माँ काली है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो तत्व इस ब्रह्मांड में देखने को मिलता है वो अंधकार ही है, अंधेरा ही है। और जब सब कुछ संपन्न हो जाता है, सब कुछ अंत हो जाता है, चाहे वो जीवन का अंत हो, चाहे वो सृष्टि का अंत हो, चाहे वो ब्रह्मांड का अंत हो, तब अंत के बाद भी जो अनंता है, वो अनंता स्वयं देवी माँ काली है, महाकाली है। और अमावस्या उसी अंधेरे को डेपिक्ट करती है। ये वो अंधेरा है जिस अंधेरे के बीच में हम पले बड़े। ये वो अंधेरा है जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, हमारे आसपास वही अंधेरा था, हमारी आसपास वही देवी माँ काली जो है वो व्याप्त थी। और उन्हीं की उपासना से इस पर्व की शुरुआत होती है। इसीलिए जब आप नवरात्र की बात करते हैं, गुप्त नवरात्र की बात करते हैं, 10 महाविद्याओं की साधना डेफिनेटली उसमें की जाती है। लेकिन एक दिन पहले देवी माँ काली की उपासना के साथ जब अमावस्या की रात्रि होती है, उस दिन से 10 महाविद्याओं की साधना शुरू होती है, उसका आरंभ होता है। आखिर क्या है देवी माँ का स्वरूप? तो मैं आपको सबसे पहले देवी माँ का एक ध्यान श्लोक सुनाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको ये अंदाजा आएगा कि देवी माँ आखिर में है कैसे। उनका एक जो मूल स्वरूप है, जिस स्वरूप में उनका प्राकट्य हुआ साकार स्वरूप में, वो स्वरूप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां। ये जो है वो देवी माँ काली का एक ध्यान श्लोक था, ध्यान श्लोक का एक हिस्सा था, एक छोटा सा अंश था, जहां पर
क्या बताया गया? देवी माँ का जो एक फिजिकल फॉर्म है, भौतिक स्वरूप है, उसके बारे में। कराल वदनाम घोराम। कराल जो विकराल है, वदन अर्थात मुख, फेस, जो घोराम है। घोर यानी जिनसे भय उत्पन्न हो, भय पैदा हो। लेकिन माँ जो है वो भयभीत किन्हें करती है? शत्रुओं को भयभीत करती है। माँ हमारे विकारों को भयभीत करती है, हमारी नकारात्मक वृत्तियों को, नेगेटिव टेंडेंसीज को भयभीत करने का कार्य करती है, उन्हें डराने का काम करती है, क्योंकि सबसे पहले उनका ही नाश होना बहुत जरूरी है। जो स्वयं अत्यंत विकराल है, भयावह है, कराल वदनाम, जिनका मुख जो है वो इतना ज्यादा विकराल है कि शत्रुओं का अपने आप ही दमन हो जाता है। असुर उनको देखते ही स्वयं अपने आप को आत्मविलोपन के मार्ग पर धकेल देते हैं। जो स्वयं घोर है और अघोर भी है। कराल वदनाम घोरा मुक्त केशिन चतुर्भुजा। मुक्त केशिन, केश अर्थात सिर के बाल। माँ की जो जटाएं हैं वो बिखरी हुई है, उनके केश मुक्त हैं। वो ऐसे लहरा रहे हैं मानो असंख्य ब्रह्मांड उसमें व्याप्त हो। असंख्य ब्रह्मांड उनके सिर के बालों में, उनकी जटाओं में पलपते हैं, पनपते हैं, आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। और वही है श्री, वही है काली। चतुर्भुजा, जिनकी चार भुजाएं हैं। उनकी भुजाओं में उन्होंने अलग अलग चीजों को धारण किया हुआ है। कहीं पर मुंड को धारण किया है, कहीं पर खड्ग को धारण किया है, कहीं पर उन्होंने अपने हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र को धारण किया हुआ है, कमल को धारण किया हुआ है। कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम, जो स्वयं दक्षिणा काली के स्वरूप में जानी जाती है, जो दिव्यादि दिव्य है, परा दिव्य है, पराशक्ति है, आदि शक्ति है, वो है देवी माँ काली। कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। विभूषिताम अर्थात जो अलंकृत है, जो तैयार हुई है। किन से तैयार हुई है माँ? माँ ने क्या धारण किया हुआ है? मुंडमाला। देवी माँ काली के मूल स्वरूप में यदि आप ध्यान से देखेंगे, जो ऑथेंटिक पिक्चर्स हमें तंत्र शास्त्रों से प्राप्त होते हैं, तंत्रराज तंत्र से, महानिर्वाण तंत्र से, रुद्रयामलम तंत्र से, वहां पर देवी माँ काली के कंठ पर, उनके गले में 51 मुंडों की माला आपको दिखाई देगी। इन नरमुंड क्या सूचित करते हैं? संस्कृत भाषा के वर्ण को ये सूचित करते हैं। जो 51 मुंड माने धारण किए हैं, वो संस्कृत भाषा के एक एक अक्षर को व्याख्यायित करते हैं। जिसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ यह है कि देवी माँ को पूजने के लिए कभी भी भाषा के ऊपर आधारित रहने की जरूरत नहीं होती। यदि आप भारत से हैं, यदि आप भारत के बाहर से हैं, तो भी सभी जगहों पर देवी माँ का साम्राज्य व्याप्त है। उनके लिए कोई सीमा लागू नहीं होती। वो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो किसी भाषा के बंधन में नहीं मानती। यदि एक बार किसी भक्त ने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनको पुकार लिया, उनका आना तय है, सुनिश्चित है। इस बात को देवी की मुंडमाला जो है वो सूचित करती है। कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब 10 महाविद्याओं की साधना की बात कर रहे हो, उस समय पर उन्हें माँ के स्वरूप में ही पूजा जाता है। मेरे जो गुरु हैं स्वामी जी, ओम स्वामी जी, उन्होंने जब तंत्र साधना ऐप लॉन्च हो रही थी, इस समय पर इस बात पर बहुत ही ज्यादा एम्फोसाइज किया था कि देवी माँ के जो निम्न कोटि के स्वरूप हैं, चाहे वो यक्षिणी हो, योगिनी हो, पिशाचिनी हो, उन्हें आप अलग अलग स्वरूप में पुकार सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं उनका। बहन के स्वरूप में, प्रेयसी के तौर पर, पत्नी के स्वरूप में। लेकिन जो मूल 10 महाविद्या हैं, उन्हें मात्र देवी माँ के स्वरूप में पूजा जा सकता है, माता के स्वरूप में ही बुलाया जा सकता है। तो सबसे पहली भ्रमणा तो ये खंडित होनी चाहिए कि हमने इनको सिद्ध कर लिया, काली को सिद्ध कर लिया, तारा को सिद्ध कर लिया। हो नहीं सकता। जो भी इस तरीके की बातें कर रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनसे ज्यादा मूर्ख शायद और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। ये साक्षात महाशक्ति है। महातंत्रा, महामंत्रा, महायंत्रा, महासना, महायाग क्रमाराध्या, महाभैरव पूजिता। साक्षात सदाशिव जिन्हें पूछते हैं, महादेव, कालों के काल, काल भैरव, महाकाल जिन्हें पूछते हैं,
वो देवी माँ स्वयं है। वही महातंत्र है, वही महामंत्र है, वही महायंत्र भी है, जिन्हें मात्र एक क्रमबद्ध तौर पर पूजा जा सकता है। और इसी कारण से देवी माँ काली से लेकर माँ कमलात्मिका तक किसी भी महाविद्या को माँ के अलावा, माँ के स्वरूप के अतिरिक्त आप पूजे नहीं, उनकी पूजा नहीं हो सकती, अर्चना नहीं हो सकती, उपासना नहीं हो सकती। तो इसी एक स्वरूप के बाद, ध्यान श्लोक के बाद, एक मेरा उत्तरदायित्व है कि आपको ओरिजिन के बारे में एक जानकारी जो है वो दी जाए। तो 10 महाविद्या की जो मूल कथा हमें प्राप्त होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? दो कथाएं हैं। सबसे पहला तो जब भगवान महादेव ने देवी माँ सती को मना किया कि आपको दक्ष प्रजापति के वहां पर यज्ञ में नहीं जाना है, क्योंकि आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। उस समय पर देवी माँ सती के मन में जो क्रोध की भावना आई, उसके कारण महादेव ने सोचा कि अभी एक तर्क कुतर्क नहीं करते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं देवी माँ से, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। तो वे वहां से चल दिए। तो जैसे ही महादेव जिस जिस दिशा में गए, वहां पर उनको रोकने के लिए, उनको मनाने के लिए देवी माँ ने अलग अलग स्वरूप को धारण किया। महादेव 10 दिशाओं में गए। कौन सी 10 दिशाएं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ईशान, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा। इन 10 दिशाओं में महादेव के द्वारा जहां जहां पर वो गए, वहां वहां पर देवी माँ ने एक स्वरूप को धारण कर लिया। और इसी के बाद 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। यही जानी गई 10 महाविद्याओं के स्वरूप में। और दूसरे प्राकट्य की कथा हमें कहीं ना कहीं अलग अलग तंत्र शास्त्रों से प्राप्त होती है, जहां पर आवश्यकता होने पर देवी माँ ने अलग अलग स्वरूप धारण किए, अलग अलग असुरों का वध करने के लिए। जैसे कि माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी थी, उन्होंने भंडासुर के वध के लिए अपने साकार स्वरूप में आकर अपनी सेना को खड़ी कर युद्ध किया, युद्ध मैदान में जाकर। वैसे ही अलग अलग प्रकार की जो देवी माँ है, जैसे कि माँ छिन्नमस्ता, उनकी भी अपनी अलग कथा है। देवी माँ धूमावती की भी अलग कथा है। देवी माँ कमलात्मिका, माँ मातंगी, सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं। किंतु मूल कथा जो है वो यहाँ से हमें प्राप्त होती है, 10 के 10 स्वरूपों के प्राकट्य की कथा। तो आपने जो जिस स्वरूप का ध्यान किया, जिस ध्यान श्लोक को आपने सुना, अब उन्हें हम विजुलाइज करने का कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है देवी माँ काली के स्वरूप को अच्छे से मन में धारण कर पाना। जब आप साधना के मार्ग पर आगे होते हो, अग्रसर होते हो, उस समय पर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साधना का, वो है कि आप मंत्र जप के दौरान क्या विजुलाइज कर रहे हो, किन्हें विजुलाइज कर रहे हो, और आपके विजुलाइजेशन में कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है। तो आज मैं आपको देवी माँ काली के स्वरूप का एक ब्रीफ विजुलाइजेशन जो है वो कराऊंगा, ताकि आगे मुझे जो आपको साधना के मार्ग पर अग्रसर करना है, उसके लिए आपको एक सुगम वातावरण प्राप्त हो। तो जहां जहां पर आप लोग बैठे हैं, वहां वहां पर अपने स्थान पर बैठकर मात्र आंख बंद कीजिए, और मैं आपको जो धारणा करने के लिए कहूँ, वो आप मन में उस स्वरूप की कल्पना कीजिए, उस स्वरूप को धारण कीजिए। धारणा से ही धारण शब्द आया, और धारणा से ही आप माँ के स्वरूप को धारण कर पाएंगे। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही ऋषि मुनियों के द्वारा एक लॉजिकल एस्पेक्ट में दिया गया बहुत ही सुंदर विज्ञान है। अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एसोटेरिक साइंस, जिसकी गरिमा, जिसकी डिग्निटी समय के साथ हमने खो दी। किंतु अब वो समय आ चुका है कि वापस इन्हीं साधनाओं को, इन्हीं स्वरूपों को हम अंतर्मन में धारण कर विश्व को एक बार फिर से बताए कि सनातन धर्म की शक्ति क्या है, सनातन धर्म का एक महत्व क्या है जीवन शैली के दौरान, उसमें एक लाइफस्टाइल में हमारा एक क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो जानना बहुत जरूरी हो चुका है। तो हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर हम देवी माँ के स्वरूप को ध्याएंगे। आपके आसपास सुदीर्घ अंधकार व्याप्त हो चुका है। जिस क्षण आपने आंखें बंद की, उसी क्षण से आपके आसपास अंधकार के अतिरिक्त और
कुछ भी नहीं है। मेरा स्वर बहुत दूर से आपको सुनाई दे रहा है। धीरे 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 आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर आकर देवी माँ का जो निवास स्थान है, स्मशान भूमि, उसकी ओर आगे बढ़ रही है। आपका शरीर स्थिर है। आपके मन में शांति व्याप्त है। धीरे 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 आपके विचार, आपकी वृत्तियां शांत होती जा रही हैं। शरीर में एक ठहराव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे जैसे आप अपने शरीर से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हो, वैसे वैसे आपको ये ज्ञात हो रहा है कि आप शरीर के बाहर निकलकर अपने आप को ही देख रहे हो, और एक बच्चे की भांति, एक छोटे से बच्चे की भांति आप स्मशान भूमि की ओर आगे बढ़ रहे हो। आपके पैरों के नीचे कांटे ना हो, इसलिए देवी माँ ने वहां पर पंखुड़ी बिछा कर रखी है। आपका मार्ग अत्यंत सुगम, सुलभ और सरल बनाने के लिए देवी माँ अत्यंत तत्पर है। वे प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, युगों युगों से, जन्मों से, कई सदियों से आपकी आत्मा देवी माँ से मुलाकात करने के लिए तड़प रही थी। देवी माँ अपनी बाहें फैलाकर आपको अपनी आगोश में लेने के लिए उत्सुक है। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं। उनका जो स्वरूप है वो एकदम काले रंग का है। उनकी आंखों में अपार ममता है। उनके चेहरे के ऊपर लालिमा छाई हुई है। उनके केश ऐसे हैं मानो समस्त सूर्य, हजारों सूर्य की किरणें उनके ही केश, उनके ही बाल से बिखर रही हो। अत्यंत तेजोमय स्वरूप है माँ का। काल रात्रि के समान उनका दैदीप्यमान देह अपने बच्चे को अपने पास, अपने समीप बुला रहा है। देवी माँ ने मुंडमाला को धारण किया हुआ है। उनके एक हाथ में मुंड को पकड़े हुए वे खड़ी हैं, जिसमें से लहू टपक रहा है। जब जब ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, कई युगों से आप प्रयास कर रहे थे देवी माँ के साक्षात्कार का, उनके दर्शन का। कदाचित देवी माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि वे सदा से आपके पास ही थी, आपके भीतर ही विराजमान थी। आप उन्हीं के अंश थे। आज वो क्षण आई है जहाँ पर फिर से एक बार जीवात्मा की मुलाकात परमात्मा से हुई है। अनेक अनेक सदियों के पश्चात
आपका मिलन अपने मूल स्रोत के साथ, अपनी जननी के साथ, माँ के साथ हुआ है। माँ अत्यंत मधुर भाव के साथ आपको अपनी आगोश में समा चुकी है। उनके आलिंगन में हजारों माँ की ममता समाविष्ट है। उनके एक आलिंगन मात्र से आपकी सभी चिंताएं दूर हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, खंड खंड होकर बिखर चुकी है। आपके भीतर परम उन्मुक्त अवस्था के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहा। आप देवी माँ को कह रहे हैं, बहुत पुकारा आपको, बहुत प्रयास किया कि आप तक पहुंच पाऊं, किंतु आज ज्ञात हुआ कि आप तो दूर थे ही नहीं। आप तक पहुंचने के लिए मुझे मात्र ममता के साथ, भक्ति के साथ आपको पुकार लगानी थी। देवी माँ की आंखों से भी अश्रु बहना शुरू हो चुके हैं। माँ अपने संतान को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रही है। आज वो भी अत्यंत खुश है। उनके चेहरे पर एक स्मित देखा जा सकता है। माँ आपसे कह रही है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे पास रहूंगी। हमेशा तुम मुझे अपने हृदय कमल पर स्थापित जानोगे। जब जब आवश्यकता होगी, तब तब ढाल बनकर, रक्षा कवच बनकर मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगी। भद्रकाली बनकर सौम्य भाव से तुम्हें प्रेम करूंगी और आवश्यकता होने पर चंडी बनकर, चंडिका बनकर, महाकाली बनकर, स्मशान काली बनकर, युद्ध मैदान में उतरकर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश भी करूंगी। इतना सुनकर ही आप अत्यंत भाव विभोर होकर देवी माँ के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हृदय पूर्वक कृतज्ञता का भाव माँ के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। धीरे 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 देवी माँ आपके भीतर, आपके देह के प्रत्येक कण में, प्रत्येक अणु में समाहित हो रही है। बाप और देवी माँ दोनों भिन्न नहीं है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हो चुके हैं। माँ आपके भीतर संपूर्णतया समाहित हो चुकी हैं। बाप वापिस लौट रहे हैं, शनही शनही अपने देह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके पैरों के नीचे वही गुलाब की पंखुड़ियां व्याप्त है।
उसी का स्पर्श आपको पुनः हो रहा है। संपूर्ण वातावरण में हजारों सूर्य का तेज व्याप्त हो चुका है। वातावरण इतनी प्रगाढ़ सुगंध से भर चुका है कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। आप अत्यंत प्रफुल्लित होकर अपने देह में वापस लौट रहे हैं। पुनः एक बार आपकी आत्मा शरीर के भीतर समाहित हो रही है। गहरे सांस के माध्यम से आप फिर से एक बार अपने शरीर का अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। एक डीप ब्रेथ, जेंटल वन। गहरी सांस लीजिए। स्वयं के शरीर को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। कुछ क्षणों के लिए एकदम शांत भाव से शरीर में स्थापित होने का प्रयास कीजिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। कदाचित आपको अनुमान तक नहीं होगा कि धारणा में क्या शक्ति है, विजुअलाइजेशन का पावर क्या है। ये कोई कल्पना नहीं है। आप अपने विजुअलाइजेशन से ही, अपनी धारणा की शक्ति से ही देवी माँ की प्राप्ति कर पाएंगे, उनका साक्षात्कार कर पाएंगे। जिस अनुभव को आपने अभी फील किया, जिस माहौल से आप अभी गुजरे, वही कहीं ना कहीं आपका मूल अनुभव बनकर रह जाएगा। समयाचार मार्ग का मूल तात्पर्य ही ये है। जिस तरीके से हमने स्मशान की कल्पना की, देवी माँ की धारणा की, उनके आलिंगन की धारणा की, उनके स्पर्श का अनुभव किया, तंत्र साधना ऐप पर भी यही समयाचार मार्ग दिया गया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न बार बार ये आते हैं कि क्यों करनी चाहिए डिवाइस पर साधना, क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। किंतु एक मूल बात नहीं समझी जा रही कि बात भले टेक्नोलॉजी की हो रही हो, लेकिन मार्ग कौन सा है। क्या मार्ग शास्त्रोक्त है? समयाचार मार्ग वही मार्ग है जहां पर आपको फिजिकली कुछ नहीं करना होता। आपका जो एक भौतिक जगत है वो कहीं ना कहीं शून्य हो जाता है, पराशून्य हो जाता है, और आप मन की उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां पर सारी घटनाएं, सारे विधि विधान मन के ऊपर हो रहे हैं, मन के पट के ऊपर किए जा रहे हैं। और वही है समयाचार मार्ग। जिस मार्ग से स्वयं स्वामी जी ने देवी माँ का साक्षात्कार किया, उसी मार्ग से वैदिक साधना फाउंडेशन, तंत्र साधना ऐप और स्वयं स्वामी जी आपको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सभी उसी सत्य का अनुभव कर पाए, जिस सत्य के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों को लिखा। जिन सत्य को शास्त्रों में आलेखित किया गया, उस सत्य तक पहुंचने के लिए भ्रमणाओं से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मिथ्स से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यदि आप देवी माँ काली को माता के स्वरूप में मानकर पूज रहे हैं, निश्चिंत हो जाइए। आप कहीं भी, किसी भी कंडीशन में कोई दोष को प्राप्त नहीं करेंगे, चाहे मंत्र का उच्चारण सही तरीके से हो या ना हो। तंत्र साधना ऐप पर जो मंत्र भी दिए गए हैं वो स्वामी जी के अपने जागृत मंत्र हैं। तो जो प्रक्रिया
दीक्षा के दौरान होती है। वही प्रक्रिया जब आप एक जागृत मंत्र का श्रवण कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उसी दौरान होती है। अगर मात्र किसी मंत्र को शास्त्र से उठाकर डाल दिया गया होता ना, तो कदाचित इतने विश्वास के साथ मैं कभी आपको ये चीज ना कहता। किंतु यहाँ पर मात्र कहीं से उठाकर मंत्रों को नहीं डाला गया। यहाँ पर मंत्रों को स्वयं सिद्ध किया गया है, उसके बाद आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो माँ काली की शव साधना जब आप कर रहे होंगे, उस समय पर माँ काली का माँ के स्वरूप में जब आप ध्यान करेंगे, तब आपकी ये साधना परिपूर्ण अवश्य होगी। और स्मशान में ही क्यों की जाती है? क्योंकि स्मशान ही वो स्थान है जहां पर सब कुछ अंत में भस्मीभूत हो जाता है। सब कुछ जहां पर अंत हो जाता है वो है स्थान स्मशान। माँ स्मशान में इसलिए निवास करती हैं क्योंकि वही तो मूल है। वही स्थान पर सब कुछ पैदा होता है और वहीं पर सब कुछ अंत भी होता है। और स्मशान भूमि का तात्पर्य यह है कि हमारे अपने हृदय को हमें स्मशान बनाना है। इसी हृदय में जब हमारे विकारों को हम जलाएंगे, नकारात्मक वृत्तियों को जलाएंगे, नेगेटिव टेंडेंसीज को जलाएंगे, नेगेटिव थॉट्स को जलाएंगे, नकारात्मक विचारों को जलाएंगे, तब जाकर हमारा अपना हृदय जो है वो स्मशान भूमि बन जाएगा। और इसी हृदय में प्राकट्य होगा देवी माँ काली का। तो जब आप साधना कर रहे होंगे, तो फिजिकली स्मशान में जाकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर बैठकर ये धारणा करेंगे कि माँ काली आपके हृदय कमल पर विराजमान होकर उसी स्मशान भूमि पर बैठकर एक के बाद एक आपके प्रत्येक विकारों को, आपकी वृत्तियों को और विचारों को नष्ट कर रही है, उन्हें जला रही है, उनका नाश कर रही है। और जब वो होता है, तब कहीं ना कहीं अहंकार का भी नाश होता है। देवी माँ काली के हाथ में जो मुंड उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो मुंड क्या सूचित करता है? अहंकार का सूचक है वो, कटे हुए अहंकार का। जब आप रिक्त हो जाते हो, खाली हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तब माँ के समीप हो जाते हो। और वो जो मुंड है, वो इसी बात का सूचक है, द्योतक है, कि माँ तक पहुंचने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ता है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम घिरे हुए होते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण से हम घिरे हुए होते हैं। इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को अपने मन में धारण करके चल रहे होते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जबकि तंत्र हमें इसी से ऊपर उठने की सलाह देता है। तो जब तक यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। जब तक अपने विकारों को नहीं जलाएंगे, जब तक अपने हृदय को श्मशान नहीं बनाएंगे, तब तक देवी माँ काली की उपासना संभव नहीं हो सकती। और देवी माँ काली के पश्चात ही माँ तारा आती है। जब एक बार सब कुछ जल गया, जब नेगेटिविटी जल गई, नकारात्मकता जो है वो भस्मीभूत हो गई, उसी के बाद माँ तारा जो है वो सूर्य के समान महाज्ञान प्रदान करती है। वो महाज्ञान इतना तेजस्वी होता है, इतना तेजोमय होता है, सूर्य के समान उनकी किरणें आपके कण कण में व्याप्त हो जाती हैं। और वही है माँ तारा। लेकिन माँ तारा के भाव में उतरने के लिए पहले माँ काली के भाव में उतरना पड़ता है। उन्हें धारण करना पड़ता है हमारे इस आसन के ऊपर। तब जाकर 10 महाविद्याओं की साधना आरंभ होती है। तो आई रियली होप कि जो ये प्रयास किया जा रहा है स्वामी जी के द्वारा, वैदिक साधना फाउंडेशन के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, कि आप तक तंत्र का सत्व पहुंच पाए, तंत्र का सत्य पहुंच पाए, तंत्र का तथ्य पहुंच पाए, वो आप तक पहुंचा हो आज की तारीख में। और पहली बार हम तंत्र साधना ऐप पर स्वामी जी के स्वर में ध्यान श्लोक ला रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपने तंत्र साधना ऐप पर अपनी साधना का आरंभ कर दिया हो, बट आई हाईली रिकमेंड कि कल जो अमावस्या की रात्रि शुरू हो रही है, कल जो अमावस्या का दिन है, कल के दिन से लेकर 4 जुलाई तक, नवरात्रि के अंत भाग तक, हर रोज एक एक
महाविद्याओं के ध्यान श्लोक को आप वहां पर अनलॉक कर पाएंगे। हर रोज देवी माँ का इसी तरीके से आप ध्यान कर पाएंगे जिस तरीके से हमने अभी साथ में मिलकर ध्यान किया। स्वामी जी के स्वर में ध्यान श्लोक के माध्यम से प्रत्येक महाविद्याओं के स्वरूप को अपने अंतर मन में धारण कर पाएंगे। और यदि संभव हो तो अमावस्या की रात से अर्थात कल से महाकाली की शव साधना का फिर से एक बार आरंभ कीजिए, यदि आपने ऑलरेडी पहले ये शव साधना जो है वो की हुई है तो। यदि आपकी साधना चल रही है और आपको यह है कि मुझे बीच में इस साधना को रोकना नहीं है, तो आप इसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं। बट यदि आप पहले दिन से नए सिरे से शुरू कर पाए तो बहुत ही ज्यादा लाभदायी होगा सबके लिए। और एक कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू, कलेक्टिव साधना के थ्रू देवी मां काली की ऊर्जा को हम जागृत कर पाएंगे। तो यदि संभव हो तो फिर से एक बार कल से डे वन से देवी माँ की साधना शुरू कीजिएगा। यदि आपको नहीं करनी, कोई बात नहीं। नवरात्र के दौरान आप क्या कर सकते हैं, देवी माँ काली का एक तांत्रिक यज्ञ जो है वो तंत्र साधना ऐप पर दिया गया है। तो डेली आप कम से कम एक बार तांत्रिक यज्ञ कीजिए। तो माँ काली का जो मूल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, उसका कम से कम 27 बार उच्चारण अथवा श्रवण यानी कि सुनना आपको ऐप पर ये क्रिया जो है वो करनी है। उस मंत्र का श्रवण करना है मिनिमम 27 टाइम्स। 108 बार कर पाए बहुत अच्छा। डेली 1008 बार कर पाए, उससे ज्यादा उत्कृष्ट बात और कोई हो नहीं सकती। तो मिनिमम 27 टाइम्स, मैक्सिमम 1008 बार। दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द होल गुप्त नवरात्रि। यदि आप वास्तव में देवी माँ की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, दिस इज द हाई टाइम। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बात प्रवचन में कही थी कि आप यदि पूरे वर्ष के दौरान कोई साधना उपासना नहीं कर सकते हैं, किंतु मात्र नवरात्र को धारण कर ले, नवरात्र के दौरान आप माँ की पूजा अर्चना कर ले, तो उससे पूरे वर्ष का फल प्राप्त हो जाता है। ये वही अवसर आपके पास फिर से एक बार आया है। और इस बार सिर्फ अवसर नहीं आया, अपने साथ एक बहुत ही उत्कृष्ट माध्यम भी लेकर आया है। तंत्र साधना ऐप नाम का एक माध्यम, जिस माध्यम से आप स्वयं सिद्ध मंत्र को, जागृत मंत्र को धारण कर सकते हैं बिना किसी दुविधा के, एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि हमारा कोई दूसरा उद्देश्य होता तो हम कभी इसे फ्री ना रखते। यदि आपने कभी भी जीवन में साधना ऐप का अनुभव किया है, इट इज कंप्लीटली फ्री। तंत्र साधना ऐप इज कंप्लीटली फ्री। ये दोनों प्रधान एप्लीकेशन जो है जहां पर मात्र मंत्र एवं तंत्र साधनाएं कराई जाती हैं, ये निशुल्क रखने का एकमात्र कारण ये है कि पूरा विश्व मंत्र साधना का अनुभव करे और भगवान एवं देवी माँ की कृपा को प्राप्त करे। एक ही विचार था मन में। स्वामी जी ने हमेशा एक ही बात कही कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब मंत्रों को प्रदान करने के लिए हमसे कोई शुल्क नहीं लिया, तो हम इन मंत्रों को आगे पहुंचाने के लिए, इस धरोहर को, इस संपत्ति को आगे पहुंचाने के लिए, इस विरासत को आगे ले जाने के लिए क्यों कोई शुल्क ले। तो मात्र इतना समझ में आ गया आपको कि सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण, समाज हित की भावना के साथ और सनातन धर्म के उत्थान के हेतु के साथ ये कार्य जो है, ये मिशन, इसको आरंभ किया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। निश्चिंत होकर इस मार्ग पर आगे बढ़िएगा। एंड मेरा बस एक ही आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक प्रार्थना रहेगी कि साधना करना मत छोड़िए। साधना की शक्ति अगाध है, अपार है, अनंत है। और इसका अनुभव तभी कर पाएंगे जब एक बार साधना करने के लिए स्वयं बैठेंगे। तो कल से, तारीख 25 जून से, अमावस्या के दिन से माँ काली की उपासना का आरंभ कीजिए। तत्पश्चात नवरात्र के 9 दिनों के दौरान क्रमशः माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका देवी माँ का आप अर्चन कीजिए, पूजन कीजिए। उनका ध्यान श्लोक के माध्यम से धारणा कीजिए और उनको धारण कीजिए अपने अंतर मन में। सो
On that note, I would like to request our COO, VSF, जो है हमारे विक्रम शास्त्री जी, a beautiful, wonderful person, wonderful, टेक्नोक्रेट जो तंत्र साधना ऐप को संभाल रहे हैं, तंत्र सर्कल को संभाल रहे हैं। आप सबके इस अनुभव को उत्कृष्ट बनाने के लिए विक्रम और हमारी पूरी टीम जो है वो कई दिनों से लगी हुई है, ताकि आप जब तंत्र साधना ऐप पर साधना करें तब आपका अनुभव इतना बढ़िया हो, इतना उत्कृष्ट हो कि आपके और ईश्वर के बीच में जो अंतर है वो धीरे 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 वो फासला कम होता जाए। और इसी के लिए दिन रात हमारी टीम जो है वो निरंतर कार्य कर रही है, आप तक साधना पहुंचाने का कार्य, सत्य पहुंचाने का कार्य, तथ्य पहुंचाने का कार्य। सो फिर से एक बार मिलेंगे Q&A के लिए, बट पहले हम विक्रम के माध्यम से ये जानेंगे कि जो ध्यान श्लोक के श्राइन की हम बात कर रहे हैं, एक विशेष मंदिर की जो बात कर रहे हैं, उसका वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, एक ट्यूटोरियल क्या होगा। यदि आपको डेली उस मंदिर में जाकर 10 दिनों के लिए देवी माँ की आराधना करनी है ध्यान श्लोक के माध्यम से, तो वो कैसे होगी। ओवर टू विक्रम। Thank you, Brahmachari ji. Thank you all. So I'll very quickly show a small demo of the secret shrine and give you information about the Dhyan Shlok, and then we'll get to a short QA session before we wrap up for the day. So I'm going to share my screen. Okay, so if you are able to see my screen, what you will be able to see in the app, if you have downloaded the update, we have released an update today. So please firstly, kindly update the app, whether you are on iOS, Android, or using Sadhana tablet. And what you will see over the last few weeks, what we have been building is this new feature for Gupta Navratri called Secret Shrine. So the secret shrine is secret because it shows up, it's not available all the time. It shows up only on auspicious dates where one can perform Dhyan Shlok of a particular Mahavidya. In this occasion, because it's Gupta Navratri, so the secret shrine will appear every single day for the next 10 days, starting from 12 a.m. tonight. As Brahmachari ji was sharing, and let me just start sharing my screen. As Brahmachari ji was sharing, so as Brahmachari ji was sharing, starting tomorrow is the Amavasya. So starting tonight, 12 a.m., the secret shrine will open up and it will be available for 24 hours. And for this 24 hours, you will be able to go in and perform the Dhyan Shlok of each of the Mahavidyas, starting with Ma Kali. And since some of you were messaging in chat as well, that you would like to know the steps that one needs to do in the sadhana. So the steps are very simple, as Brahmachari ji put forth. Firstly, 12 a.m. every night, starting from tonight, the Dhyan Shlok, the secret shrine will open up. So from then on to 24 hours, which means you have 1 day of time to go into the secret shrine, perform the Dhyan Shlok. You can do it 11 times, 27 times, 108 times as per your wish. And once you do so, the app will itself guide you. And the aim is to take the best out of this auspicious time. As Brahmachari ji said, once you finish, you start with the Dhyan Shlok, the visualization aspect. Once you finish that, go on to Ma Kali world and perform 27 chants of Ma Kali Tantric mantra and offer one fire offering. This is, of course, if you can do this, then based on the paucity of your time, availability of your time, if you can do this, that will be great. So I'll repeat. Dhyan Shlok in the secret shrine, 27 counts of Ma Kali Tantric mantra and one fire offering. Now, of course,
there are different sets of people here seeing the live stream. Some of you are already in Ma Tara world. Some of you have opened Ma Tripura Sundari world. Congratulations for all of you, by the way. Yesterday was the day. If you had started the app right from the launch, from when Swamiji conducted the live streaming, yesterday you would have opened Ma Tripura Sundari world. And I know many of you have done that. It simply means that every single day you have been performing the sadhana, which is fantastic and an inspiration to all of us. So, what would you do if you are in Ma Tara, Ma Tripura Sundari, Ma Kali? Maybe you are already in Shav Sadhana. As Brahmachari ji said, it would be fantastic if you can continue doing your sadhana, and along with that, see if you can perform the Dhyan Shlok, which will take you only about 5 minutes or so, and a few minutes of Ma Kali's mantra and the 15 minutes of Ma Kali Yajna. If it is possible, again, do so. Otherwise, please do what is possible by you. I would definitely urge you to perform the Dhyan Shlok without fail. So I won't take further time of yours. I will just show you very quickly how the secret shrine will look like and your experience. And then we will go on to a Q&A session. So keep up your questions ready. You can put it up in chat. Brahmachariji will be answering the questions. Uh, sorry for the start of the session being a little late. So you will have to allow us a little bit of flexibility only today. From tomorrow onwards, we will stick to the schedule. All right, so video coming up right now. So I'm gonna quickly forward and show you the important parts. So as you can see on the right side, there will be secret shrine. You will see it a little different. You will see it more beautiful in the app that you would update today. So once you go in, again, as I said, the secret shrine will be available only on certain days. And thanks to Swamiji for guiding us, for putting time also and giving us these important Dhyan Shloks in his voice and taking time out to do that, which is why we are able to do this. So we really hope that you like this new world, this new location, and it's a very small location, but we really hope that you enjoy doing the rituals here. So as you can see, you arrive at the secret shrine. There is Vedavyas. You will interact with Vedavyas, and of course, Welcome to the secret shrine. It is a rare blessing to be here. Of course, Vedavyas' voice is Swamiji. Swamiji is guiding us through Vedavyas, and as you can see, you will get to know what exactly needs to be done. In fact, you can read the Dhyan Shlok for the day and understand the meaning as well. Please note the meaning can be read in English or Hindi. So English, viewers, you will very much be at ease. So as well, Hindi seekers, Hindi people as well. So once you go in, you will see Ma there, and obviously it will start with Ma Kali. Remember, when is it that this secret shrine will open? It will open tonight, 12 a.m. So immediately after that, till tomorrow, 12 a.m., you are welcome to perform these the Dhyan Shlok here. So again, I will just show you very briefly so that you get a glimpse of what this feature is all about. As some of you who have started Tantra Sadhana, you already know you have a chant feature that you can use, and then Om Shavarudam Mahabhimam Goradanstram Sanmukhim Chaturbhujam Khadagamund Varabhayakaram Shivam Mundam as you can see, Aladharam Devim Laljuham Digambaram Evam Sanchitet Kalim Shamshanalaya Vasinim. so you can listen to the chant of Swamiji and understand more about the Dhyan Shlok, its meaning, and of course you can spend time in the temple, and then you are welcome to meet Vedavyas, who will give us the next steps. And post this, you can go to Ma Kali world and perform the tantric mantra chanting and the one fire offering. Well, that was the short, video that I wanted to kind of share with you so that
you are aware of where to go in the app and perform the action. So let me bring Brahmachari back. Brahmachari ji, we will pick up some questions. So Sure, let me Vikram. just also do a multi-share. Yes. So we'll pick up some questions and ask you. So since there are a mix of Hindi speaking people and English speaking people, Brahmachari ji, I would request you to answer in both if possible, so that both are guided. Mhm. So the first question is, what is the best time to perform Mahakali Sadhana? Once the secret shrine opens tonight at 12 a.m., what would you recommend as the best time to perform? So my recommendation is to perform at night because kahin na kahin it is connected to, after sunset rituals. So that's why it is recommended कि आप इसे रात में ही परफॉर्म करें. यदि सनसेट के बाद संभव हो पा रहा है तो इट्स अ बेस्ट थिंग टू डू. But if you can't do it after sunset, then you can do it after, the sunrise as well. So there is no harm, there is no such kind of thing that आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा या फिर आपको रात में ही करना है, आप सुबह कर रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. डू इट whenever you can, just do it. Great. Thank you, Brahmachari ji. If somebody is doing some other sadhana, is it okay to continue doing that sadhana along with the Mahakali sadhana that they will start today? What is the right protocol here, Brahmachari ji? Absolutely, you can do simultaneously both the sadhanas. For example, if you are doing now Durga sadhana with the Tantra sadhana, so it will be more beneficial. So if you are performing now Durga sadhana on Sadhana app and you are performing Ma Kali sadhana on Tantra sadhana app, how will it be beneficial? Because in the Navana mantra, Eng Ring Kling Chamundai Viche, the whole Navana mantra that is connected to Ma Chamunda is connected to Ma Kali. And the Bij mantra Kling is the Bij mantra of the seed syllable of Ma Kali. And you are doing Tantra sadhana of Ma Kali on the Tantra sadhana app. So if you are doing Nav Durga sadhana on sadhana app and माँ काली की शव साधना on तंत्र साधना ऐप, ये दोनों अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन साबित होगा साधना करने के लिए. सो इन माय वर्ड्स, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. Hmm. नवान मंत्र से भी माँ काली की एक जो उपासना है वो की जाती है. Navana mantra is one of the most potent mantras to worship Ma Kali, of doing her Mahapurush Charana. That's why Navdurga sadhana is connected to Navana mantra, and this is how Navana mantra is connected to Ma Kali as well as Shav sadhana. So you can do any kind of sadhanas together. If you are doing any sadhana on sadhana app, या फिर आपका अपना कोई नित्य कर्म है, अपनी कोई नित्य पूजा है, तो उसके साथ साथ आप माँ काली की साधना कर ही सकते हैं. Thank you, Brahmachari ji. And is there one more question that comes up commonly is, what if one does a mistake? What if, due to inadvertent reasons, one cannot do the sadhana on a daily basis and they miss a day? So should one be afraid of any negative consequences? And is there anything, what should we do after this, after missing or after doing some mistake? So there is a name which comes in Sri Lalita Sahasranama. The very first name of Divine Mother is Sri Mata. So how can a Ma, a Divine Mother, can harm her children? So without any kind of fear, just do your sadhana. अगर आपसे गलती हो भी रही है, अगर आपसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है या फिर साधना में कोई चूक हो रही है, निश्चिंत होकर करिए. आप माँ को पुकार रहे हैं. कभी आपने ये देखा है कि आप अपनी माँ को, जो आपके बायोलॉजिकल मदर हैं, उन्हें आप पुकारे और वो गुस्सा हो? अगर आप उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, अगर आप उन्हें प्यार से पुकार रहे हैं, भाव के साथ पुकार रहे हैं, भक्ति के साथ पुकार रहे हैं, तो वो कैसे आपको हानि पहुंचाएगी? क्यों पहुंचाएगी? उन सारे भ्रमणाओं से बाहर निकल जाइए कि माँ जो है वो उग्र ऊर्जा का स्वरूप है और वो जब आती है तब आपके शरीर को तहस नहस कर देती है या फिर पूरा एक भूकंप ला देती है. वो सारी कहने सुनने की बातें, और ये बातें वही करते हैं जिन्होंने माँ का साक्षात्कार नहीं किया. जिन्होंने किया हो, जैसे कि स्वामी जी, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते. सो अगर आज बाहर नहीं निकले इन भ्रमणा से तो कभी नहीं निकल पाएंगे. दिस इज द हाई टाइम
कि अब सारी दुविधाओं को, सारी भ्रमणाओं को, सारे भय को, सारे डर को बाहर छोड़कर शांति से देवी माँ को पुकारे, भक्ति के साथ, समर्पण एवं श्रद्धा के साथ देवी माँ की भक्ति करें। Thank you, Brahmachari ji. That was very well said. So, one more question that has come up is, what if inadvertently, what if there is a death in the family? What happens during this time? Should one continue to do the sadhana or not? Is also a common question, and somebody is asking that, Brahmachari ji. ओके, सूतक का एक जो इश्यू है वो आज की तारीख में एक कंटेम्प्ररी इश्यू बन चुका है। जो भी देश में सिचुएशन चल रही है उसमें सूतक वाला इश्यू, ये एक हेडलाइन बनी हुई है न्यूज़पेपर की। बट कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा गया कि सूतक के दौरान आपको साधना रोक देनी चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आपके घर में किसी परिवार में किसी मेंबर की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, बट आपको साधना कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि साधना एक ऐसा अभिन्न अंग है आत्मा की उन्नति का, जिसके माध्यम से आप जिस आत्मा की एक सदगति हुई है, जिनका अवसान हुआ है, उनकी सदगति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनके मोक्ष के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर सूतक के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान साधना जारी रखिए। उसे रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है। कहीं भी हमारे चारों वेदों में से एक भी वेद में ये बात नहीं लिखी गई कि सूतक के दौरान एवं मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको साधना नहीं करनी। डू योर साधना fearlessly. Thank you, Brahmacharya ji. Another question that has come up is from people who are abroad, and the question was, when will the secret shrine open up? I will take this question, Brahmacharya ji. The answer is, the secret shrine will open up at 12 a.m. local time. So, 25th, 12 a.m. is when the secret shrine will open up with Ma Kali's Dhyan Shlok, and 26th, 12 a.m. It will open up for Ma Tara, and subsequently in the order of the Mahavidyas. So, which means that wherever you are, 12 a.m. local time of 25th is when the secret shrine will open up for you, and you can begin your sadhana from that point in time, perform it for the next 24 hours, depending on your availability and of time. One more question, Brahmachari ji, that's come up is, people are, some of them are saying, like, I lack bhav, my mind gets scattered while performing the sadhana. What is it one can do to come into bhav and also not have the mind be as scattered? जब समुद्र मंथन हुआ था, द ग्रेट चर्निंग ऑफ द ओशन, उस टाइम पर भी क्षीर सागर से हलाहल विष ही पहले निकला था। तो आप जब साधना करने के लिए बैठते हैं, व्हेन यू आर डूइंग साधना, व्हेन यू सिट फॉर द साधना, you need to be prepared to consume the poison as well। जो आपका मेंटल पॉइजन है, जो टेंडेंसीज का पॉइजन है, जो अफ्लिक्शंस का पॉइजन है, वो पहले ही निकलेगा, क्योंकि आप चर्निंग कर रहे हो अपने माइंड का, अपने अपने मन का, अपने अंतरात्मा का मंथन कर रहे हो। उस मनोमंथन से, उस समुद्र मंथन से पहले तो विष ही निकलेगा। उसके बाद धीरे 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 रत्न निकलने की शुरुआत होगी, कामधेनु गाय निकलेगी, उच्छेश्रवा घोड़ा निकलेगा, ऐरावत हाथी निकलेगा, कौस्तुभ मणि भी निकलेगा, और अंत में जाकर जो है अमृत की प्राप्ति होगी। और वहां पर भी नहीं रुके तो कहीं ना कहीं आगे जाकर देवी माँ की प्राप्ति लक्ष्मी के स्वरूप में जो है वो भी अवश्य होगी। तो निश्चिंत होकर, यदि आप ध्यान नहीं दे पा रहे, इफ यू कान कॉन्सेंट्रेट, इफ यू कान सिट स्टिल ड्यूरिंग साधना, जस्ट कीप डूइंग योर साधना, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज नीडेड। उसके अलावा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो माँ है ना, वो पराशक्ति है। उन्हें ज्ञात है कि आपको किस तरीके की आपके ऊपर कृपा बरसानी है, कब आपको कितना मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा सा देवी माँ के ऊपर भरोसा करना सीखिए। यदि ये विश्वास होगा तो अपने आप देवी माँ स्वयं आपको आगे बढ़ाएंगी। जिस दिन मैं के भाव से बाहर निकल गए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, उस दिन देवी माँ स्वयं आपकी सूत्रधार बनकर, आपकी सारथी बनकर आपके जीवन रथ को संभाल लेंगी। उसी क्षण की प्रतीक्षा करनी है। उस डर से बाहर निकल जाइए कि मेरा क्या होगा। इस भाव में रहिए कि देवी माँ है ना मेरे साथ, वो क्या होने देगी मुझे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा मन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि भाव, ये जो एक श्रद्धा है, वो आपके मन में इसका आरोपण हो गया, बीजारोपण हो गया,
तो भवसागर पार करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। Thank you, Brahmachari ji. So, just one last question. So, thank you for everyone for staying a little longer. Having said that, Brahmachari ji, what is the will we be meeting again tomorrow? And would we be just what kind of schedule for people to plan? What is the plan tomorrow, Brahmachari ji? Absolutely, we are meeting for the for the whole Navratri festival. हम 10 के 10 दिन मिलने वाले हैं टिल 3rd of July। सो डेली हम ऐसे ही मिलेंगे, डेली ऐसे ही हम Q&A करेंगे, डेली हम ऐसे ही प्रत्येक महाविद्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साधना के बारे में और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। We'll meet on a daily basis, so definitely we are meeting tomorrow as well. Thank you so much, Brahmachari ji. I think we have taken quite a few questions. And those of you who do have more questions, you are welcome to write to us at serve@tantrasadhana.app over email, or ask the question in the Tantra Circle groups, or of course in the chat in YouTube. We will try to make sure that all of your questions gets answered. We have prepared a guide as well for you, so that you know exactly when, what needs to be done, and how. All we have tried to compile all of your questions, gotten the answers, and put forth there as well. And exactly what Brahmachari ji said, what Swamiji wants to pass on, to make sure that we are very clear of what needs to be done, is captured in the guide. Please make sure you get access to the guide, and that should kind of give you the steps to go ahead. In fact, after 12 a.m., if you simply open the app itself will guide you. Ideally, it should all work just like it's meant to. So thank you, Brahmachari ji. Thank you everyone for attending this session. It was, you could have been doing anything, but yet you are here. This shows the love and support you have for Vedic Sadhana Foundation, for the team, and for everyone involved. So on behalf of everybody, thank you so much. We will see you tomorrow, same place, same time, 10 minutes earlier, 8 o'clock. Bye-bye. Good night, wherever you Thank are. you so much. Thank Shri you. Matre Namaha.